Hello everyone. So this is the lecture for topic 2 of module 1, which is distortion. Okay, so in the previous lecture we have learned about various type of ideal amplifiers. Now in each practical amplifiers we have some distortion. So in this lecture we will study about what is distortion and what are its types. Okay, so this is the topic of module 1, which is ideal amplifiers. Okay. Now the outline for this topic is introduction, means we will introduce the distortion and what are its types, that is amplitude distortion, frequency distortion, harmonic distortion and phase distortion. Okay, so one by one we will see this. So let's before starting the topic distortion, first a quick recap to what we have learned till now. The first thing we have learnt is voltage amplifier, okay, in which input and output both are voltage. Second is current amplifier, in which both input and output are current. Third is trans resistance amplifier. Now to find out what quantity is in input side and which quantity is in output side, we have a simple trick. Trans resistance, that means resistance equals to V by I. Okay, and in amplifier numerator is always output, denominator is input. We have studied this, that in amplifier gain output by input, so voltage will be in output and current will be in input. In similar way, transconductance amplifier, transconductance, so conductance is opposite of resistance, that means conductance will be I by V. So in transconductance amplifier current will be in output and voltage will be in input. So this was a quick recap and the basic input and output circuitry. Make sure you practice well. So now come to the introduction. In introduction, basically what is distortion? So we know that amplifier amplifies or boosts the input signal and give us amplified output signal. Also the shape of the signal is preserved. ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग एक एम्पलीफायर में इनपुट डालते हैं और आउटपुट मिलता है. आउटपुट क्या होता है? इनपुट का एम्पलीफाइड वर्जन होता है. मतलब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? गेन ऑफ एम्पलीफायर इनटू 5 वोल्ट. लेकिन एक जो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि जो भी शेप है इनपुट का वही शेप हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए. पर डिस्टॉर्शन क्या होता है? अनवांटेड वेरिएशन. ये चीज नोट करना है, अनवांटेड या अनडिजायर्ड. डिस्टॉर्शन वांटेड नहीं होता है, हम लोग चाहते नहीं है कि डिस्टॉर्शन हो. ये एक अनवांटेड वेरिएशन है इन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, and there should be output in the amplified output signal with respect to the applied input signal. ठीक है, so this unwanted variation is known as distortion. Suppose अभी हम लोग ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं, ये एम्पलीफाई होके आउटपुट में हमें ऐसा सिग्नल मिला, ट्रायंगुलर की जगह रेक्टेंगुलर मिला, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्टॉर्शन हुआ है. Okay, so distortion is unwanted variation in the output signal with respect to the applied input signal. The desired information carried by the input signal may change because of distortion. Obviously, मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन कैरी रहता है, कोई भी सिग्नल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो जब उसका शेप चेंज हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा. हम लोगों ने देखा है इन्वेलप डिटेक्टर में, जब हम लोग एएम और ये सब पढ़ते थे, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ते थे, उसमें हम लोग देखते थे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कंटेन होता था? मैसेज के एम्पलीट्यूड में या फिर फ्रीक्वेंसी में, वहीं पे इंफॉर्मेशन रहता था. अगर एएम यूज करते थे तो वहाँ पे मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कंटेन रहता था. अगर एफएम यूज करते थे तो वहाँ पे मैसेज सिग्नल कहाँ कंटेन रहता था? सिग्नल कंटेन रहता था. ये सब हम लोग कर चुके हैं. तो दैट मीन्स अगर हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा इन्फॉर्मेशन भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं. ठीक है, तो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, इसको एम्पलीफायर के थ्रू दे रहे हैं, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? एम्पलीफाइड वर्जन मिल रहा है, लेकिन डिस्टॉर्टेड है. यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? डिस्टॉर्टेड है ये चीज. ठीक है, ऐसा लग रहा है सिग्नल यहाँ से क्लिप हो गया है. तो ऐसा क्यों हुआ? इसका शेप चेंज हो गया है सिग्नल का. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारा इस पीक पे था वो इंफॉर्मेशन तो अब हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए डिस्टॉर्शन जो होता है वो अनडिजायर्ड होता है. हम लोग चाहते नहीं हैं कि डिस्टॉर्शन हो. नाउ टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन, अगर ब्रॉडली
क्लासिफाई करें डिस्टॉर्शन को तो पहला होता है लीनियर डिस्टॉर्शन, दूसरा होता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। ठीक है, लीनियर डिस्टॉर्शन मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स क्या समझते हो? लीनियर, कोई भी चीज लीनियर होता है, इसे बोलते हैं लीनियर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, लीनियर मीन्स हम लोग जनरली जानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है तो लीनियर है, ऐसा कुछ है तो लीनियर है। ठीक है, पर एक्चुअल में लीनियर मीन्स क्या समझते हो वो हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं जब हमारा x का वैल्यू 2 है फर्स्ट वैल्यू, तो y 6 है। जब सेकेंड वैल्यू हम लोग x का 5 लेते हैं तो y आता है 15, और थर्ड वैल्यू है x 4 है तो y 12 है। अब हमें पता लगाना है कि अगर सिस्टम में कुछ ऐसा वैल्यू है कि हम लोग इनपुट ये देते हैं तो आउटपुट कुछ मिलता है। ठीक है, इनपुट x है आउटपुट y है, मतलब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें इनपुट हम x दे रहे हैं, आउटपुट y मिल रहा है। So somebody has asked you whether this system is a linear system or not. कैसे पता करना है लीनियर है या नहीं? लीनियर सिस्टम के लिए जो मेन जो कंडीशन होता है वो क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स शुड बी कांस्टेंट। डेल्टा मीन्स चेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट। ये मैथ्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्लोप या ग्रेडियंट वो होता है वाई बाय एक्स। ठीक है, तो ग्रेडियंट और स्लोप, डेल्टा मीन्स चेंज, स्मॉल चेंज, सो डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स। ओके, अब ये लीनियर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि जब x 2 है हमारा ये 6 है। ठीक है, अब डेल्टा वाई निकालना है, मीन्स चेंज इन वाई। तो किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं? जो पुराना वैल्यू था वो और जो नया वैल्यू है वो। ठीक है, तो चेंज डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 क्या होगा? 15 माइनस 6, और x2 माइनस x1 5 माइनस 2। तो ये क्या आया? 9, ये क्या आया? 3। ठीक है, तो इन दो वैल्यू, जो शुरू के दो वैल्यूज हैं, इन दोनों से जब हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाला तो क्या आया? 9/3। ठीक है, अब अगर ये सिस्टम लीनियर है तो नेक्स्ट जो इन दोनों के बीच का जो डेल्टा y बाय डेल्टा x आएगा वो इसी के इक्वल होना चाहिए, 9/3 के। तो हम लोग देखते हैं अभी डेल्टा y क्या हो जाएगा? 15, सॉरी y, अभी क्या हो जाएगा? ये y3 है तो y3 माइनस y2, और डेल्टा x क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2। तो y3 अब क्या हो गया? 12 माइनस y2 था 15, ये x3 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5। तो ये क्या आया? -3, ये आया -1। ठीक है, तो अभी यहाँ से डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना आया मेरा? -3 बाय -1, दैट मीन्स 3। तो जब हम शुरू का दो वैल्यू ले रहे हैं तो मेरा dy बाय dx क्या आ रहा है? 9/3। नेक्स्ट वैल्यू जो नेक्स्ट चेंज हो रहा है x और y में, उससे स्लोप आ रहा है 3। तो स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है कि फॉर लीनियर सिस्टम ये स्लोप जो होता है उसको कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स से we take another system in which values are x equals to 2, then y equals to 6, x equals to 4, y equals to 12, and x equals to 8, y equals to 24. Now in this case, if we find delta y, which is y2 minus y1, means this time we are taking these two values. So y2 minus y1 will be 12 minus 6, which is 6, and x2 minus x1 is 4 minus 2, 2. So delta y by delta x equals to 6/2, which is 3. That means slope is 3. Now if we take another pair, that means this 2 and 3, then delta y by delta x equals to 24 minus 12, which is 12, and 8 minus 4, which is 4. So again delta y by delta x is 12/4, which is 3. So in both the cases the slope is 3, and for linear system we have already seen delta y by delta x should be constant. That means this system is linear. ठीक है, तो लीनियर नॉन लीनियर कैसे पता करना है? लीनियर मीन्स उसका जो ग्रेडियंट है या स्लोप है या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे जो भी चेंजेस हो रहा है एक्स में और वाई में,
उसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो सिस्टम लीनियर है। अब इसी चीज़ को हम लोग प्लॉट में देखते हैं कि एक्चुअली ये तो टैबुलर फॉर्म में है, तो एक अगर प्लॉट में देखें तो लीनियर चीज़ कैसा दिखता है। ठीक है, तो जब भी हमारा स्लोप कांस्टेंट होगा, हमारा जो लीनियर अगर सिस्टम प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। हम लोग इसी चीज़ को प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब प्लॉट करते हैं। तो जब x2 है y6 है, x2 y6 कहाँ होगा, यहाँ, तो 2 और 6। प्लॉटिंग आई थिंक आप लोग सभी जानते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि x और y दोनों का जो डिवीजन होगा, जो एक्सिस डिवीजन है कि कितना विड्थ का चीज़ 2 होगा, या यूनिट जो हम लोग डिसाइड करते हैं 1 यूनिट कितना डिस्टेंस है, वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ये एक बॉक्स को 4 माने हैं तो यहाँ पे हम ये दोनों मिला करके 4 मानेंगे, नहीं। अगर हम बोलें कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, एक स्क्वायर मीन्स 4 यूनिट, तो एक्स एक्सिस पे भी एक स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट होगा। ठीक है, जब हम एक्सिस पे नंबर ये कर लिए, नंबरिंग कर लिए, तो अब हम प्लॉट करेंगे। x2 है तो y6 है, x2 मीन्स ये लाइन, y6 मतलब यहाँ पे, तो कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। सेकंड है x4 देन y12, x4 यहाँ है, ये ऐसे हम लोग लाइन लेंगे, y12 है यहाँ पे, इसका मतलब जो पॉइंट ये दर्शा रहा है वो है ये। सिमिलर वे में x8 है, y24 है, x8 यहाँ है, ये 8 कहाँ तक जाएगा, 24 तक, जब तक इसको 24 यहाँ है तो दूसरा पॉइंट यहाँ है। अब अगर हमें प्लॉट करना है इसे, तो प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मिलाते हैं। तो अब मिलाएंगे अगर पॉइंट, तो क्या होगा, हम लोग अगर ये लेते हैं, पॉइंट मिला रहे हैं, तो ऐसे मिलाना है इसका। ठीक है, तो अभी जब पॉइंट मिलाए तो ये कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, लेकिन अगर वही हमारा स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, जो हमारा पहले वाला डेटा था, उसको प्लॉट करके ट्राई कर सकते हो तुम लोग। उसमें क्या होगा, जब प्लॉट करोगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। नॉन लीनियर में क्या रहेगा, कभी किसी का स्लोप 3 रहेगा, कभी किसी का कुछ और वैल्यू रहेगा। तो नॉन लीनियर जो भी सिस्टम होता है, उसका जब प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या देखें कि लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नेचर। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप क्या होगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ये हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, हम लोग वापस से अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों को डिस्टॉर्शन पढ़ना है। इसका ज़रूरत था ये समझने में कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, इसीलिए इसमें हम लोग इतना टाइम दिए। ठीक है, तो हमारा डिस्टॉर्शन क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। Linear distortion occurs when small input signal drives the device and it operates in the linear region of its characteristic। अच्छा, सबसे पहले ये समझना है कि जो एम्पलीफायर है, ये कोई चीज़ से बना है, कोई डिवाइस से बना है। तो जनरली ये जो बेसिक एम्पलीफायर होता है वो ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर हर डिवाइस का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कितने वोल्टेज पे वो कितना करंट देगा, या किस वोल्टेज पे वो कैसा बिहेव करेगा। तो ट्रांजिस्टर का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट आउटपुट होता है, और इनपुट जो हम लोग देते हैं वो देते हैं इनपुट वोल्टेज। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में, जहाँ पे हम लोगों को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ना है। तो वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिटेल में सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इसलिए अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा होता है कि वोल्टेज हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आईसी, पहले देखो, पहले शुरू में उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आईसी पे, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन आईसी वैसा ही 0 है। फिर धीरे धीरे और जब बढ़ाते हैं, जैसे ही वो 0.7 वोल्ट क्रॉस करता है तो एब्रप्ट इंक्रीज हो जाता है आउटपुट करंट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हर ट्रांजिस्टर का कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक में लीनियर रीजन भी होता है और नॉन लीनियर रीजन भी होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, नॉन लीनियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। लीनियर रीजन इसमें कहाँ पे आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लग रहा है। तो ये वाला जो रीजन है वो लीनियर रीजन है, और ये जो रीजन है वो नॉन लीनियर रीजन है। अब क्या होता है, ये रीजन, दोनों रीजन है तो VBE के ही साथ में, वो डिपेंड कर रहा है कि इनपुट वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं। अगर इनपुट वोल्टेज हम यहाँ और यहाँ के बीच में दे रहे हैं तो फिर हमारा आउटपुट किस में लाई करेगा, इस नॉन लीनियर रीजन में। लेकिन अगर इनपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ से इतने टाइम में दे रहे हैं,
तो आउटपुट कहाँ लाई करेगा, आउटपुट जो भी आएगा इन बिटवीन लीनियर रीजन में आएगा। तो इसी के बेसिस पे कि हमारा सिग्नल अगर हम स्मॉल सिग्नल देते हैं, अगर स्मॉल सिग्नल मीन जिसका एम्पलीट्यूड कम है, तो यही है इनपुट VBE। तो अगर हम स्मॉल सिग्नल देते हैं तो वो क्या करता है, जो ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि स्मॉल सिग्नल डिवाइस को लीनियर रीजन में ही रखता है, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो लीनियर रीजन में ही रहे, इतना तक तो ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्शन इस केस में क्या चीज में होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होता है वो लीनियर डिस्टॉर्शन में आता है। लीनियर डिस्टॉर्शन में क्या होगा, हम लोग एक स्मॉल इनपुट सिग्नल देते हैं डिवाइस में, वो स्मॉल इनपुट सिग्नल डिवाइस को लीनियर रीजन में ही ऑपरेट कराता है। लेकिन डिस्टॉर्शन क्या चीज से होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक से। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब सिग्नल में अगर 5 तरह का फ्रीक्वेंसी है तो वो पांचों फ्रीक्वेंसी एक जैसा एम्पलीफाई नहीं होता है। कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एम्पलीफाई होगा, कोई फ्रीक्वेंसी कुछ और गेन फैक्टर से एम्पलीफाई होगा, जो कि हम लोग देखेंगे। दूसरा जो केस आता है वो होता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का। ये डिस्टॉर्शन कब अकर करता है, जब हमारा जो सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल हम लोग देते हैं, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो लार्ज होता है। तो जब एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एम्पलीट्यूड जब बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो नॉन लीनियर रीजन में चला जाता है। और नॉन लीनियर रीजन में जाएगा तब तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट होना ही है, ठीक है। ट्रांजिस्टर लीनियर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग मॉड्यूल 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पहले एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन इज अ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन अकरिंग इन अ डिवाइस व्हेन आउटपुट एम्पलीट्यूड इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट एम्पलीट्यूड। ऑब्वियसली अगर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है, इसका मतलब है कि जो भी डिवाइस है एम्पलीफायर में वो लीनियर रीजन में काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा आउटपुट एम्पलीट्यूड है वो लीनियर फंक्शन नहीं है इनपुट एम्पलीट्यूड के, ठीक है। तो अगर मेरा एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है तो वो कुछ और दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। अगर ये 6 वोल्ट है तो इसको 7 होना चाहिए, ये यहाँ 9 वोल्ट दिखा रहा है, तो क्या होगा, मैपिंग लीनियर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अकर होता है। ऑब्वियसली ये भी अनडिजायर्ड है, हम लोग चाहते नहीं है कि ये हो। When the input signal drives the transistor in non-linear region, the collector current no longer remain as a linear function of input voltage. अभी हम लोग देखिए x और y लीनियर फंक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पे x जो है वो हम लोग समझेंगे कि इनपुट वोल्टेज और y क्या है, कलेक्टर करंट। तो अगर ट्रांजिस्टर से वो एम्पलीफायर बना है, दैट मीन्स कलेक्टर करंट आउटपुट है और जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कब होगा, जब लीनियरिटी नहीं रहेगा आउटपुट इनपुट में, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज और कलेक्टर करंट लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अकर करेगा। अभी हम लोग इसमें देखते हैं ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक लगभग ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन की तरह है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये क्या हो रहा है, ऐसे कर्व हो रहा है, मतलब इस पॉइंट के बाद जो है नॉन लीनियर रीजन आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम कोई वेव दे रहे हैं ये जिसको कि एम्पलीफाई होना है, तो ये वेव क्या होगा, ये x है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या होगा, यहाँ आएगा। इसको एम्पलीफाई भी करना है तो अगर ये वाला हाफ एम्पलीफाई होकर के इतना आया, एम्पलीट्यूड बढ़ना है, शेप भी प्रिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वाला हाफ में गया, इस हाफ में जाने पे क्या हुआ, जब ये एम्पलीट्यूड जब इसका बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इतने ऊपर जाना चाहिए था एम्पलीट्यूड ऐसे, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर हम लोग लिए हैं उसका मैक्सिमम कलेक्टर करंट कहाँ तक दिखा रहा है, बस यहीं तक। तो जितना भी इस पोर्शन के ऊपर वाला करंट है वो सब क्लिप हो जाएगा, वो सारा जो भी डिस्टॉर्शन है वो यहाँ एम्पलीट्यूड का ये जो ऊपर वाला लेवल है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। और ये हमेशा नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के कारण होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा है। तो अगर मैक्सिमम कलेक्टर करंट यही लेवल का है IC, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर क्लियर कर दें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे IC और ये करंट यहाँ, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो है बस इससे ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन हमारा इस पॉजिटिव हाफ में यहाँ पे जो सिग्नल दे रहे हैं वो एम्पलीफाई होकर क्या होगा, और ऊपर जाएगा, लेकिन और ऊपर तो जा नहीं सकता है क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो IC है वो यहीं तक है, इसीलिए क्या होगा, ये इतना एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए हैं कि नॉन लीनियरिटी के कारण है ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब thus due to non-linearity in the transconductance curve of ट्रांजिस्टर, ये जो कर्व हम लोग शो किए हैं इसको कहते हैं ट्रांसकंडक्टेंस कर्व। क्यों ट्रांसकंडक्टेंस, हम लोग क्या जाने थे अभी एम्पलीफायर जब पढ़े थे, ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, I by V, दैट मीन्स Y में करंट है और X में वोल्टेज है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो Y में यहाँ पे करंट है, X एक्सिस में वोल्टेज है, इसीलिए ट्रांसकंडक्टेंस कर्व है। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्या है कि ट्रांसकंडक्टेंस कर्व में नॉन लिनियरिटी है, इसी के कारण एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ पे और अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये प्लस VCC और माइनस VCC, ये हम लोग DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर में, ये भी हम लोग देखेंगे, बायसिंग वोल्टेज है ये। तो जब ये एम्पलीफाई होगा, बायसिंग वोल्टेज ये है, इसके मैक्सिमम VCC मैक्सिमम वोल्टेज रहता है, उससे ज़्यादा तो वो जा नहीं सकता है। तो जब ये बायस होगा ट्रांजिस्टर, तब ये इनपुट सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होके आउटपुट में मिलेगा, और जब आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। लेकिन ट्रांजिस्टर भी जितना मैक्सिमम वैल्यू है उतने तक ही तो एम्पलीफाई कर सकता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो वो बस यहीं तक एम्पलीफाई करेगा और ऊपर वाला जो चीज़ है वो उसको क्लिप कर देगा। तो ये पता चल रहा है यहाँ पे भी क्लिप हो गया, यहाँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं है। तो ये क्यों होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के कारण। तो ये था एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि जब भी सिग्नल, जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोग लीनियर नॉन लीनियर में ये देखे भी थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जो होता है वो लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, मतलब कि हम लोग जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो स्मॉल सिग्नल होता है और वो ट्रांजिस्टर को लीनियर रीजन में ही ऑपरेट करता है। लेकिन डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो डिफरेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर से एम्पलीफाई होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक सिग्नल में बहुत सारा फ्रीक्वेंसी हो सकता है। अब जैसे कोई गाना सुनते हो तो उसमें क्या होता है, पीछे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का भी आवाज़ रहता है। ठीक है, जो मेल लीड सिंगर होता है उसका आवाज़ रहता है, कोरस आवाज़ रहता है, तो हर आवाज़ का अपना एक अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक म्यूजिक सिग्नल है, इसमें ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो तबला का आवाज़ है, ये फ्रीक्वेंसी हारमोनियम का है, ये फ्रीक्वेंसी पियानो का है, ये फ्रीक्वेंसी जो मेल सिंगर है उसका है, और ये फ्रीक्वेंसी जो फीमेल सिंगर है उसका है। तो अब हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी है। लेकिन तुम सोचो कि अगर तुम उस गाने को एम्पलीफायर में डाल रहे हो और लाउड स्पीकर से तबला का आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है, बाकी जो सिंगर हैं मेल और फीमेल, इन लोग का कहीं पे एकदम धीरे आ रहा है। ठीक है, या फिर हारमोनियम का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है और सिंगर का आवाज़ कम आ रहा है, तो वो गाना सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई भी म्यूजिक सिग्नल को जब हम एम्पलीफायर में डालते हैं तो उस एम्पलीफायर का काम क्या है कि कोई भी जो भी सिग्नल है उसमें जितना भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है सबका एम्पलीफिकेशन एक जैसा हो। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट को हम 5 टाइम्स एम्पलीफाई कर रहे हैं तो सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को 5 टाइम्स ही एम्पलीफाई होना चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको वो किसी और फैक्टर से एम्पलीफाई करता है, दूसरे कंपोनेंट को किसी और से करता है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो इनपुट है उसमें सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सारे जो भी सिग्नल है यहाँ पे, जो भी फ्रीक्वेंसी का, सबका जो इनपुट वोल्टेज है वो सेम है। लेकिन एम्पलीफिकेशन के बाद क्या हुआ, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसका कुछ और वोल्टेज आ गया, दूसरे फ्रीक्वेंसी का कुछ और वोल्टेज, तीसरे का कुछ और। तो दैट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज एम्पलीफाइड बाय डिफरेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। अभी ऐसा होता क्यों है, तो दिस इज काउज्ड बाय इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस ऑफ एम्पलीफाइंग डिवाइस। जहाँ पे भी कैपेसिटेंस का बात आता है वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ठीक है, तो फेज डिस्टॉर्शन क्यों अकर होता है, फेज डिस्टॉर्शन अकर्स व्हेनेवर देयर इज टाइम डिले बिटवीन इनपुट एंड अकरेंस ऑफ सिग्नल एट द आउटपुट। मीन्स क्या होता है, हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर में जब हम इनपुट दे रहे हैं तो हमको आउटपुट भी मिल जाए, उसी टाइम कोई डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देयर इज अ टाइम डिले, ठीक है, अगर हमारे इसमें टाइम डिले होता है तो क्या होगा, इनपुट हमारा ग्रीन है, आउटपुट अगर ब्लू मिल रहा है तो क्या होगा, ये फेज शिफ्ट हो गया। जो चीज़ ये ब्लू वाला पोर्शन यहीं पे आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है,
इतने टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज लीड करता है, ये फेज शिफ्ट में रिजल्ट करता है वेव के। तो इसके कारण क्या होता है कि ये फेज डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो जब भी टाइम डिले होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, फेज डिस्टॉर्शन। इसको डिले डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, डिले मीन्स देर होना। ठीक है, तो इनपुट अगर हमारा ये है ग्रीन वाला, आउटपुट डिलेड आएगा, तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन होना ही है। ठीक है, इसको हम लोग हार्मोनिक के कॉन्सेप्ट में भी ले सकते हैं कि अगर इनपुट सिग्नल हमारा ये ब्लू पोर्शन जो इनपुट सिग्नल है, ग्रीन पोर्शन हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक है, कैसे पता करेंगे, अगर ब्लू वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ तक अब इसी सेम टाइम पीरियड में जो दूसरा फ्रीक्वेंसी वो कितने बार चेंज हो रहा है, प्लस माइनस 2 बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रीन सिग्नल है वो सेकंड हार्मोनिक है। ठीक है, तो जो ओवरऑल सिग्नल आएगा, अभी क्या होगा, ये ब्लू और ग्रीन सिग्नल ऐड हो जाएगा। ऐड होने पे जो ओवरऑल सिग्नल आएगा वो कैसा होगा, ब्लू सिग्नल था उसमें इतने दूर तक ग्रीन सिग्नल और ऐड हो रहा है और इतने दूर तक ग्रीन सिग्नल माइनस हो रहा है। तो जो ओवरऑल आउटपुट सिग्नल जो हम लोगों को आएगा ये कुछ इस टाइप का आएगा, डैश्ड वर्जन। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन क्या है, अनवांटेड है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि डिस्टॉर्शन हो। 4 टाइप का डिस्टॉर्शन है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या होता है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है। जब कोई भी जो ट्रांजिस्टर डिवाइस है वो नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है तब एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता है, लीनियर टाइप का डिस्टॉर्शन है वो, उसमें जो डिवाइस है हमारा वो लीनियर रीजन में ही ऑपरेट करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन में क्या करता है वो, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर से एम्पलीफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोनिक है, हार्मोनिक में क्या होता है कि जो भी हमारा फंडामेंटल वेव है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हार्मोनिक है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हार्मोनिक के ऐड होने से हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और लास्ट टाइप का जो डिस्टॉर्शन है वो है फेज डिस्टॉर्शन, जिसको डिले डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। ये अकर करता है जब हमारा इनपुट आउटपुट में कुछ टाइम डिले हो जाता है। ठीक है, तो फेज डिस्टॉर्शन मेनली अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रिएक्टेंस। तो हम लोग उसमें भी देखे थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी रिएक्टेंस के ही कारण होता था, फेज डिस्टॉर्शन भी रिएक्टेंस के ही कारण हो रहा है। तो एज अ सिग्नल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, सो व्हेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सफर डिफरेंट फेज शिफ्ट, फेज डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। हम लोग जानते हैं रिएक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, इंडक्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे, और दोनों ही इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो किसी भी चीज का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रहता है। और फेज डिस्टॉर्शन क्यों होता है, रिएक्टेंस के कारण होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज होगा हमारा फेज शिफ्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फेज डिस्टॉर्शन होता है। तो ये था अभी तक का डिस्टॉर्शन के बारे में। सो कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोगों के। ठीक है, सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।